Hi everyone, my name is Manish Chouhan and chemistry is my profession. आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं and that is where to use dilute and concentrated word in a reaction. आपको ये dilute और ये concentrated acid ये वर्ड कब लिखना होता है? ठीक, बच्चे बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं कि सर ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड लिखें कि ना लिखें. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड कहां पे लगता है. आइए सबसे पहले मेरे साथ चार्ट बना लीजिए. सर नाउ व्हाट इज दिस रिटन? CO3 2 नेगेटिव. ये क्या लिखा हुआ है? कार्बोनेट. व्हाट इज दिस रिटन? SO3 2 नेगेटिव. सल्फाइट. सल्फाइट. व्हाट इज दिस रिटन? CO3 2 नेगेटिव. कार्बोनेट. और यू कैन यूज बाइकार्बोनेट or you can take bisulfite, right? और ये मैंने क्या लिखा? सल्फाइड. सल्फाइड. Okay, with these three you always use dilute acid. You always use dilute HCl, dilute H2SO4. Okay, बट प्लीज डोंट टेक HNO3. उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, पर मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जब भी आप रिएक्शन कराएं तो दे ऑल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. प्लीज डोंट टेक डाइल्यूट HNO3. अवॉइड व्हाई? बिकॉज डाइल्यूट HNO3 इज अ टिपिकल एसिड. इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? सो उसको थोड़ा जरा साइड में रखो. पहले हम ये देख लेते हैं कि ये लोग किससे रिएक्ट करते हैं? डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं. अच्छा, व्हेन यू ऐड डाइल्यूट एसिड सो दे विल गिव यू विद बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, दे विल गिव यू व्हिच गैस? CO2 गैस. सल्फाइड विल गिव यू व्हिच गैस? सल्फर डाइऑक्साइड it will give you. And sulfide will give you which gas? H2S, hydrogen sulfide. Very very important question. अब मुझे कैसे पता चलेगा how this question comes in board exam? आपको सवाल कैसे आएगा ये देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपने सपोज करिए यू हैव टेकन अ कार्बोनेट, राइट? सोडियम कार्बोनेट you have taken. Now you add acid. When you add acid in it, it gives you a gas evolved, and that gas turns lime water milky. Turns lime water milky. ये आधी इंफॉर्मेशन हुई, ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हुई. Because when you take sodium sulfite and when you add acid, it also evolves which gas? Sir, that I don't know. It also evolves a gas and that also turns lime water milky. So how will you distinguish carbon dioxide and sulfur dioxide? आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि कौन सी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है और कौन सी गैस सल्फर डाइऑक्साइड है? तो इसके लिए याद रखिएगा, पहला टेस्ट इज KMnO4 टेस्ट. Which test? KMnO4 test. What is the color of KMnO4? So the color is purple color, right? Now this is KMnO4 solution. ये क्या है? KMnO4 solution. आप इस KMnO4 solution में CO2 पास कराइए. जब आप CO2 पास कराएंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा. तो that confirms that this gas is carbon dioxide gas. पर अगर आप इसके बीच में if you pass SO2 gas, so SO2 gas what SO2 gas will do? It will decolorize KMnO4. okay, इसका जो पर्पल कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा, राइट? अब जरा ऐसे समझिए पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा. देखिए, नोट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है. सोडियम कार्बोनेट
Okay, and this is sodium sulfite. How will you distinguish these two? Sodium is common, so forget about sodium. Now, which anion is present? Carbonate anion is present. Which anion is present? Sulfite is present. Now listen, on adding, on adding dilute HCl, or you can take dilute H2SO4, on adding dilute HCl, gas evolved, gas evolved, which turns lime water milky. Lime water milky, right? But on passing, on passing through, on passing through KMnO4 solution, KMnO4 solution, it its color, its color does not change. याद रखिएगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा. Then you will say the gas evolved is carbon dioxide gas. But which anion is present? Then you will write carbonate anion is present. Carbonate ion, CO3 2 negative ion is present. इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा. अब सेम केस, on adding dilute HCl, gas evolved. आपको नहीं मालूम कौन सी गैस है, you simply write what? Gas evolved which turns lime water milky. Both the gases turns lime water milky, both the gases. But on passing through KMnO4 solution, KMnO4 solution get decolorized. It decolorize the solution. So this gas is sulfur dioxide and the anion part is sulfite ion. Understood? This question is very, very important. Let's go back. Again. Carbonate, what is the formula? CO3 2 negative. What is the formula of sulfite? SO3 2 negative. What is the sulfide? Right? When you add this carbonate ion will give you effervescence of carbon dioxide. That turns lime water milky, but do not change the color of KMnO4. But when you take sulfite ion and you add acid, it also evolves a gas that also turns lime water milky, but it decolorizes KMnO4 solution. Purple color become colorless, right? So this is how you will distinguish CO2 and SO2. And the third one is H2S, right? There is one more. Instead of KMnO4, is there any other solution? Yes, there is one more solution. That also I'll tell you. And that one is K2Cr2O7 plus H2SO4. Potassium acidified. What is this called? Acidified potassium dichromate solution. Okay, what is the color? Orange color. Okay, which color? Orange color. When you take this orange color solution and you pass CO2, let me tell you, there is no change in color. No change in color. No change in color, right? But when you pass which gas? SO2 gas. When you pass, so orange color changes to green. Now this is very, very important.
I've told you two tests. Which one? One is KMnO4 solution. What is the color of KMnO4 solution? Purple. Then another I've told you, potassium dichromate, acidified potassium dichromate. What is the color? Orange. जब आप इसमें CO2 पास कराएंगे कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जब आप इसमें SO2 पास कराएंगे तो इसका कलर ऑरेंज टू ग्रीन होगा. दिस इज हाउ वी डिस्टिंग्विश कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. इतनी बात क्लियर हो गई. फिर से प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं. ये देखिए, आपको लिखना इस तरीके से पेपर में. अच्छा, एक बात का ध्यान रखिए, ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl, तो यू विल ऑल्सो इन दिस केस ऑल्सो यू विल एड डाइल्यूट HCl. बच्चे क्या गलती करते हैं, ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl here they use different, no they use different acid. No, don't do like this. अगर आप जो चीज इसमें डाल रहे हैं वही चीज इसमें डालनी है. सेम इफ यू आर टेकिंग डाइल्यूट HCl, प्लीज टेक डाइल्यूट HCl. दोनों के केस में क्या हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है. सर बोथ टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. एक KMnO4 को क्या कर रहा है, डज नॉट डीकलराइज. दूसरा क्या कर रहा है, डीकलराइज. नाउ द इंपॉर्टेंट वर्ड, इट डीकलराइज द सॉल्यूशन एंड इट डज नॉट डीकलराइज द सॉल्यूशन. So this is how we distinguish CO2 and SO2. Acha, the next and now the third gas is H2S gas. अरे सर, सड़े अंडों की स्मेल, रॉटन एग स्मेल, सर बड़ी गंदी बदबू आती. लेकिन इसका केमिकल टेस्ट क्या लिखेंगे पेपर में? What you have to write? आप, अच्छा, what is this written? Lead. What is the acetate? Lead acetate. If you don't know the formula, you can write the name. Lead acetate. अब lead acetate solution में आप पास कराइए H2S gas. पास कराइए. What will happen? You will get PBS. PBS का कलर black. It will settle down black PPT you will see, and you will get acetic acid. What will you get? Acetic acid. So what is the chemical test for hydrogen sulfide gas? So you will say, when we pass through the lead acetate solution, it gives black PPT, right? Or you simply write, it changes to, it gives black color, right? So today we have done how many gases? We have done CO2, we have done SO2, we have done H2S. H2S को तो जैसे रिलीज होते एकदम पता लग जाता है कि that is rotten egg smell, right? आप याद रखिएगा, कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फाइड, they reacts with dilute acid. अब आगे चलते हैं. Now concentrated acid, ये किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? क्लोराइड आयन के लिए, ब्रोमाइड आयन के लिए, आयोडाइड, नाइट्रेट. whenever you see these anions, then you will use which acid? Concentrated acid, right? आपको बस इतना याद रखना है. अच्छा, एक होते हैं इंडिपेंडेंट रेडिकल्स. इंडिपेंडेंट radicals, negative radicals, acidic radicals, सल्फेट और फॉस्फेट. सल्फेट और फॉस्फेट ये कभी किसी एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे. हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमें इतना याद रखना है, राइट? चलिए, अब आइए, अब मैं आपके लिए एक नया मंत्र लेके आया. सर आपने एक मंत्र तो बता ही दिया, कहां डाइल्यूट इस्तेमाल करना है, कहां कॉन्सेंट्रेटेड इस्तेमाल करना है. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं solubility of salt, although it is not the part of the syllabus, पर आपको पता होना चाहिए. सर क्या पता होना चाहिए? कौन से सॉल्ट पानी में घुलते हैं, कौन से सॉल्ट पानी में नहीं घुलते. ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, तभी आप रिएक्शन को समझ पाएंगे. जैसे
सॉल्युबिलिटी में रूल नंबर 1, चलिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस रिटन? सोडियम आयन। व्हाट इज दिस? पोटेशियम आयन। एंड व्हाट इज दिस? अमोनियम आयंस। कोई भी सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम का सॉल्ट आपको दिखे, आप क्या बोलिएगा? इट इज सॉल्युबल। सबसे पहले यही काम करना है। Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, अमोनियम, अमोनियम, तो इनके सॉल्ट पानी में सारे क्या होते हैं? सॉल्युबल। याद रखिएगा, सॉल्युबल। सेकंड, व्हाट इज दिस? आई हैव रिटन NO3 नेगेटिव एंड NO2 नेगेटिव। इसको क्या बोलते? इसको क्या बोलते? इसको बोलते नाइट्रेट। इसको क्या बोलते? नाइट्राइट। ये नाइट्रेट, ये कौन है? नाइट्राइट। ये जो भी लेड नाइट्रेट सॉल्युबल, कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्युबल, मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्युबल, नो एक्सेप्शन, सारे नाइट्रेट पानी में और सारे नाइट्राइट पानी में सॉल्युबल। दिमाग में बिठा लो, सारे नाइट्रेट और सारे नाइट्राइट सॉल्युबल। तीसरा, तीसरा है सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव। ऑल सल्फेट आर सॉल्युबल, सारे। सर जैसे जिंक सल्फेट सॉल्युबल, कॉपर सल्फेट सॉल्युबल, फेरस सल्फेट सॉल्युबल, एक्सेप्ट 3 सल्फेट। याद रखिएगा, 10th में बच्चों को घोट घोट के पिलाता नहीं, याद रखिएगा। कौन? एक्सेप्ट बेरियम सल्फेट, बेरियम sulfate. The color of the barium sulfate is white. Lead sulfate and calcium sulfate, they are insoluble. ये पानी में नाक को घुलते, ये नहीं घुलते। ये हम 10th में बच्चों को, अच्छा इसका रीजन क्या होता है वो तो जब आप ग्रेड 11 में आएंगे तब हम आपको समझाएंगे ये पानी में क्यों नहीं घुलते, ये क्यों घुलते हैं, राइट। अभी ग्रेड 10 में आपको ये समझना है कि कौन से सल्फेट 3 बताए मैंने जो पानी में नहीं घुलते? बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। बोलो नहीं, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ूं, चलिए। अब फोर्थ रूल, फोर्थ रूल है हैलाइड्स। हैलाइड्स, हैलाइड्स में कौन कौन आएगा? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये सारे के सारे पानी में क्या होते हैं? सॉल्युबल, राइट। NaCl सॉल्युबल, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्युबल, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्युबल, कॉपर क्लोराइड सॉल्युबल। सारे हैलाइड्स पानी में क्या होते हैं? सॉल्युबल। जिंक क्लोराइड सॉल्युबल, फेरस क्लोराइड सॉल्युबल, राइट। सिर्फ 3 मेटल को छोड़ के, और वो 3 मेटल पता कौन सी होती है? एक होती है सिल्वर, एक होती है मर्क्यूरी और एक होती है लेड। इन तीनों के हैलाइड्स जो हैं वो पानी में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। जैसे AgCl इनसॉल्युबल, AgBr इनसॉल्युबल, AgI insoluble. What is the color of AgCl? White. What is the color of AgBr? Pale yellow. What is the color of AgI? Yellow. ये याद रखिएगा क्योंकि हमें बोर्ड में क्वेश्चन आता है दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, तो हमें सारे कलर्स मालूम होंगे। आगे चल के मैं आपके लिए एक लिस्ट बना दूंगा और उसमें सारे सब कंपाउंड्स के कलर एक साथ आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, तो आपको आसान हो जाएगा कि किसका क्या कलर होता है। तो AgCl व्हाइट, AgBr पेल येलो, AgI येलो, ये सारे पानी में क्या है? इनसॉल्युबल। दे ऑल आर इनसॉल्युबल, राइट। Hg2Cl2, Hg2Br2, ये भी पानी में क्या है? इनसॉल्युबल। PbCl2, PbBr2, PbI2, ये भी पानी में क्या है? इनसॉल्युबल। लेड का सिर्फ एक ही सॉल्ट होता है जो पानी में क्या होता है? सॉल्युबल, और वो पता कौन सा होता है? लेड नाइट्रेट।
lead carbonate insoluble, lead sulfate insoluble, right? Lead nitrate is the only salt which is insoluble, right? और इसका कलर, what is the color of PbCl2? White. What is the color of PbBr2? Pale yellow. What is the color of PbI2? Yellow. ओके मेरे बच्चा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबको याद रखनी है, सर क्या याद रखना है, क्या याद रखना है? दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्या याद रखना है? देखिए क्या याद रखना है। लेड के जो सॉल्ट है, दे आर सॉल्युबल इन हॉट वाटर एंड इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ये लाइन आपको याद रखनी है, soluble in hot water and insoluble in cold water। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक? तो सारे हैलाइड्स पानी में क्या होते हैं? soluble except three metals, silver, Hg and Pb, right? Next, last point, and that last point is, what is this written? Carbonate. What is this written? Sulfite. What is this written? Sulfite. What is this written? Phosphate. ये सारे के सारे क्या होते हैं? Insoluble. ये सारे के सारे पानी में क्या है? Insoluble. Calcium carbonate insoluble, calcium phosphate insoluble, zinc carbonate insoluble। ये सारे पानी में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। लेकिन किसको छोड़ के? याद रखना, सोडियम अगर कभी लग जाए तो मेरा बच्चा सोडियम कार्बोनेट इज व्हाट? इट इज सॉल्युबल। बट इफ यू टेक जिंक कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल, राइट? सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम के सारे सॉल्ट पानी में क्या होंगे? सॉल्युबल। लेकिन याद रखिएगा, इनको छोड़ के बाकी मेटल्स के कार्बोनेट, सल्फाइड और फॉस्फेट पानी में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। सर इतनी सारी बातें पढ़ाई, सॉल्युबल ऑफ सॉल्ट, ये मंत्र आपने दिया, ये आएगा किस काम? मैं आपको बताता हूं, आपको एक मंत्र, लास्ट लाइन याद रखना। व्हाट इज द लास्ट लाइन? नाउ सी, जब आप रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन में कभी सॉल्युबल सॉल्ट से सॉल्युबल सॉल्ट अगर बने तो रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन होता है। इनसॉल्युबल सॉल्ट से अगर सॉल्युबल सॉल्ट बने तो रिएक्शन होगा। इनसॉल्युबल से या सॉल्युबल टू इनसॉल्युबल रिएक्शन होगा। लेकिन इनसॉल्युबल सॉल्ट से इनसॉल्युबल सॉल्ट अगर बन रहा है तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। इनसॉल्युबल सॉल्ट टू इनसॉल्युबल सॉल्ट, वो रिएक्शन नहीं होगा। ये मंत्र कैसे अप्लाई करते हैं, इनको हम देखेंगे अगले वीडियो में, और वो वीडियो रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, राइट? तो मिलते हैं, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।